बेसिक रिविजन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज अभी सबसे सी को लेके डी से 10 लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है। Hello, hi and welcome to all of my viewers. Now today in this video we are going to solve some of the numericals on the first chapter, that is electric charge. In the last 4 videos we have already gone through the chapter and today we are going to solve some basic questions. So before starting the video, before solving the numericals, I like to give some idea about the basic formulas. The first formula, the most important formula, which is Q is equal to plus minus n into A, which is called as quantization of charge. यहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज ऑन ए बॉडी, N क्या होता है, इंटीजर होता है, N का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, which represents number of electrons, and E is what charge of an electron whose value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Second, हम लोग पढ़े थे कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, सो द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, दैट इज Q total is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus and so on. And the third property we had gone through, that charge is invariant, that is charge on a body doesn't change with the change in speed, that is the charge on a body when it is at rest is equal to the charge on the body when it is motion, that is Q rest is equal to Q motion. And the fourth one is the conservation of charge, which states that the total charge on a system remains the same before and after any chemical reactions. Okay, now these were the basic formula which used to be used. Now we have to start the first problem, the first question, and the question is how many electrons constitute, the question is, write down the question, how many electrons constitute a charge of 1 coulomb. अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट ए चार्ज ऑफ 1 coulomb. एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है चार्ज के ऊपर कि एक कुलम की चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, चार्ज दिया है, चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, 1 coulomb, मतलब Q इज इक्वल टू 1 coulomb. हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, और हमको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 coulomb. मतलब यहाँ से सिस्टम साफ दिख रहा है कि आपको वैल्यू दे रखा है Q का, आपको n पूछा है, और हमको E का वैल्यू हमेशा पता रहता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 coulomb है. अभी आप सोचो Q, N और E को लेके क्या फॉर्मूला है, एक ही तो बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई. सो वी आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N, सो व्हाट इज N, N इज इक्वल टू Q बाई E. वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, Q1 E इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. सो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1.6 मतलब 16 बाई 10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 मतलब 1 बाई 10 टू द पावर 9. सो दैट विल बी इक्वल टू 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 9. दिस कैन बी रिटन एज 100 बाई 16 इंटू 10 टू द, सॉरी दिस इज 19 into 10 to the power 18. So that will be equal to what, 6.25 into 10 to the power 18. This is the answer. So in 1 coulomb of charge will get how many number of electrons, 6 into 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. एक बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा मतलब आप जो कोई भी बुक्स ले जाओ उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 coulomb ऑफ नेगेटिव चार्ज. मतलब एक कुलम के नेगेटिव चार्ज में आपको कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा. तो Q का वैल्यू 1 coulomb है, आपको N पूछा है, E आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 coulomb. फॉर्मूला Q, N और E को लेके एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू N. आपको N का वैल्यू पूछा है, सो N इक्वल टू Q बाई, जस्ट पुट द वैल्यूज and just go for a proper calculation, you will get that the value is what, 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. Means in 1 coulomb of charge you will always find 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेता है 2 coulomb की चार्ज में कितने होगा. तो आपको अगर ये वैल्यू याद होगा तो आप उसमें सीधा सा 2 मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. अभी नाउ विल मूव इनटू द सेकंड क्वेश्चन. What is the second question? Write down the question. The second question is also based on the same formula, but it is a slightly changed. It's a little bit different. What's the question? Calculate the number of electrons present in a oil drop if the charge
present on the oil drop is 12.8 into 10 to the power minus 18 coulomb. This is the question. Once again I am saying calculate the number of electrons present in a oil drop if the charge present on the oil drop is 12.8 into 10 to the power minus 18 coulomb. फिर से आप अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि पूछ रहा है कि एक ऑयल ड्रॉप है, उसके ऊपर जो चार्ज है उसका वैल्यू आपको दे रखा है कितना 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, मतलब Q का वैल्यू दे रखा है। उसका सोल्यूशन अगर हम ऐसे करते हैं, Q का वैल्यू कितना है 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। उसके बाद ये पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर से आपको n पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, और आपको हमेशा याद रहता है कि E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। आपको Q दे रखा है, आपको n पूछा है, E का वैल्यू आपको याद है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हमको वही सेम फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू n इंटू ई। सो n इज इक्वल टू Q अपॉन E, Q डिवाइडेड बाई E, दैट इक्वल टू Q इज इक्वल टू 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दैट इक्वल टू, अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो 12.8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू ये हो जाएगा कितना 10.18 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 18 बाई 10 टू द पावर माइनस 19, ये उसको आ जाएगा, उसमें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 10 टू द पावर 19, सो दैट इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 टू द पावर 19 माइनस 18 1, दैट इक्वल टू 80, मतलब आपको 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। सो ये क्वेश्चन भी जैसे पहले क्वेश्चन की तरह था, थोड़ा सा चेंज था। तो यहाँ से आपको ये दो क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि जहाँ भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेगा तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, Q इज इक्वल टू एन ई, व्हिच इज सिंपली द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो आपको Q इक्वल टू एन ई फॉर्मूला सिंपली लगाना है और यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ विल मूव इनटू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, राइट इट। A person argues that charge on a body is 4. A person argues that charge on a body is 4 into 10 to the power minus 18 coulomb. Is he correct? Once again I am saying the question. A person argues that charge on a body is 4 into 10 to the power minus 8 coulomb. Now the question is he correct? मतलब एक आदमी ने आर्ग्यू किया कि दुनिया में एक ऐसा बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। अभी क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि ये पॉसिबल है, वो आदमी जो बोला वो क्या सही बोला है। अभी देखो हम लोग पढ़े थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में चार्ज ऑन एनीबॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब n का जो वैल्यू है वो इंटीजर आना चाहिए। अगर वो इंटीजर आया तो पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं आएगा तो सच ए चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो आपको यहाँ पे फिर से क्या करना है, चार्ज ऑन ए बॉडी Q का वैल्यू दे रखा है कितना 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और हमको पता है E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। आप पहले n निकाल लो, n इज इक्वल टू, हमको पता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, सो दैट n इक्वल टू व्हाट Q डिवाइडेड बाई E, और Q का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दैट इक्वल टू व्हाट 4 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19, दैट इक्वल टू दिस इक्वल टू 14 बाई 16 इंटू this equal to 10 to the power minus 8 plus 19, that equal to 11. So this equal to what, 40 by 16, 16 2 is 32, 8 16 5 is 2.5 into 10 to the power 11, that equal to, I can write what, 25 into 10 to the power 10, मतलब 25 में कितने zeros आएंगे, 10 zeros आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and clearly this answer or the value of n clearly is an integer, that's why such a charge is possible. ठीक है,
और एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। ये पूछा था कि दुनिया में क्या ऐसे कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है कि जिसके ऊपर चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁸ कूलम। सो हमको कैसे पता चलेगा कि चार्ज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है दुनिया की कोई सा भी आप बॉडी ले जाओ उसके ऊपर चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की चार्ज की इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, मतलब द वैल्यू ऑफ एन शुड बी एन इंटीजर। तो हम लोग क्या किए, क्यू का वैल्यू लगा लिए, ई का वैल्यू हमको पता रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी हमको तो पता है Q = एन, सो उस फॉर्मूले से हम लोग एन का वैल्यू निकाल दिए। अगर एन का वैल्यू इंटीजर आएगा तो ऐसा चार्ज पॉसिबल है। अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगा 2.3, 1/7, 1/33, 3.3, 2/3 लाइक समथिंग, देन सच ए चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सो जहाँ पे भी आप क्वेश्चन बनाओगे, अगर आपको ऐसा कोई चीज़ पूछा है कि ऐसा चार्ज पॉसिबल है, मतलब दुनिया के बॉडी के ऊपर ऐसा चार्ज रह सकता है क्या, उस टाइप की क्वेश्चन में आपको सिंपली याद रखना है, आपको एन का वैल्यू निकालना है और आपको चेक करना है जो एन का वैल्यू है वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। अगर वो इंटीजर होता है तो पॉसिबल है, क्योंकि वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट इज Q = एनी रूल को ओबे करेगा। अगर वो इंटीजर नहीं होता है, नॉन इंटीजर आता है, फ्रैक्शन आता है, डेसिमल में आता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नाउ विल मूव इन टू प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 वही उसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हटके से है। क्या है क्वेश्चन, आप लिख लो पहले तो क्वेश्चन लिखो, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो पहले, वरना क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए मेटल स्फीयर। क्वेश्चन ये देख रहा है, ए मेटल स्फीयर हैज ए चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम व्हेन 5 × 10⁻12 number of electrons are removed from the sphere, what would be the net charge on it? What would be the net charge on it? क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ना चाहिए। अभी देखो, क्वेश्चन को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन ये दर्ज है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले से कुछ चार्ज था और हम लोग जब उससे इतने इलेक्ट्रॉन्स ले गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स उससे निकाल करके ले गए, अभी उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज कितना आएगा। तो पहले ए मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले चार्ज सामान लो से Q0 ले जाओ, -6 माइक्रोकूलम पहले से था। When 5 × 10⁻12 number of electrons are removed from the sphere, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तो पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि ये हो गया आपको, मान लो Q इनिशियल, पहले से इतना चार्ज था, तो Q ट्रांसफ़र कितना हुआ आपको दिखाना पड़ेगा ना। Q ट्रांसफ़र, आप इतने इलेक्ट्रॉन्स ले गए तो Q ट्रांसफ़र कितना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Q टोटल मतलब नेट चार्ज, उसके ऊपर जो नेट चार्ज आएगा आप उसको टोटल लिख सकते हैं, = व्हाट, Q इनिशियल प्लस Q ट्रांसफ़र। कॉन्सेप्ट यही है, ये होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब पहले से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ चार्ज था, उसके बाद हम लोग उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो अभी उसका टोटल चार्ज पूछा है। तो देखिए Q ट्रांसफ़र कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखा है, n = कितना दे रखा है, 5 × 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n का वैल्यू दे रखा है। अभी हमको पता है Q, अभी हमको पता है E क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है। तो पहले हम लोग Q निकाल देंगे, Q मतलब Q ट्रांसफर, मतलब ये प्रोसेस में कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। Q का फॉर्मूला क्या रहता है, n × E, दैट = 5 × 10⁻12 × 1.6 × 10⁻⁻19, 5 × 1.6 that will be equal to 8, 10⁻12 × 10⁻⁻19 that equal to what, 10⁻⁻7. So I can write it what, 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम, दैट इक्वल टू 0.8 माइक्रोकूलम। लेकिन अभी ये चीज़ है कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा, मतलब आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले जाते हो, तो अभी उसके ऊपर जो चार्ज आएगा, हम लोग पहले से पढ़े कि ये बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉडी से आप इतने इलेक्ट्रॉन्स लेके गए हो, तो अभी ये जो चार्ज डेवलप होगा उसमें पॉजिटिव का होगा, मतलब ये प्लस नेचर का होगा, तो प्लस हो गया। अभी आप निकाल लो Q ट्रांस, मतलब Q टोटल = क्या होगा, Q इनिशियल प्लस Q ट्रांसफर,
तो देखो क्यू इनिशियल का वैल्यू था -6 माइक्रोकूलम, अभी ये हो जाएगा प्लस 0.8 माइक्रोकूलम. साइन इज मोस्ट important, sign is most important, so that will be equal to what, -6 plus 0.8, that equal to -5.2 microcoulomb. So the net charge on the body will be equal to -5.2 microcoulomb. और एक बार एक क्वेश्चन को गौर से देखिए. क्वेश्चन दिया है कि द चार्ज ऑन ए बॉडी वाज -6 माइक्रोकूलम when 5 into 10 to the power 12 number of electrons are taken from it, are removed from it, then what will be the net charge on the body. एक बॉडी के ऊपर पहले से कुछ चार्ज था और वो चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज -6 माइक्रोकूलम. आप उससे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के ले लिए, तो पहले देखो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने से उसके थ्रू कितना चार्ज डेवलप हुआ, और वो चार्ज का नेचर क्या है, प्लस है माइनस है. उसके बाद हम लोग टोटल चार्ज, नेट चार्ज, फाइनल चार्ज कैसे निकालेंगे, पहले से कितना चार्ज था और अभी चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ. सो क्यू टोटल विल बी इक्वल टू क्यू इनिशियल प्लस क्यू ट्रांसफर. तो पहले क्यू ट्रांसफर निकालना पड़ेगा. हमको पता है चार्ज का फॉर्मूला, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई. एन का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 12. ई का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. अभी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू ई, तो ये वैल्यू डाल दोगे तो आपको मिलेगा कितना, 0.8 माइक्रोकूलम. ये तो मिल गया चार्ज का मैग्नीट्यूड. अभी चार्ज का नेचर मतलब चार्ज का नेचर निकालना है. हमको पता है चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है. अभी ये क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस स्फीयर. इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया मतलब दिस बॉडी हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है पॉजिटिव का आता है, तो ये लग जाएगा प्लस साइन, मतलब प्लस साइन प्लस 0.8 माइक्रोकूलम. तो पहले से उस बॉडी के ऊपर चार्ज -6 माइक्रोकूलम था, अभी इलेक्ट्रॉन्स ने ले जाने से उसके ऊपर चार्ज प्लस 0.8 माइक्रोकूलम डेवलप्ड हो गया. सो अभी हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज लगाएंगे. सो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस. मतलब यहाँ पे इनिशियल पे कितना था, फिर उसके बाद ट्रांसफर होने से कितना चार्ज डेवलप हुआ. सो -6 माइक्रोकूलम प्लस 0.8 माइक्रोकूलम, आपको फाइनल मिल जाएगा कितना, -5.2 माइक्रोकूलम. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये जो चार्ज क्यू ट्रांसफर का जो साइन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रॉन्स लिए हो या उसको, उस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन आप दिए हो. अगर इलेक्ट्रॉन लिए हो मतलब द बॉडी हैज, यू हैव रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी, देन द charge will be positive, and if you have given electrons to the body, then the charge will be what, negative. Okay, so now we'll move into the problem number 5. What is the fifth question? Write down the question. Question is a polythene piece. Question number 5 is a polythene piece when rubbed with wool is found to have a negative charge of 16 into 10 to the power -18 coulomb. Calculate the mass transferred from wool to polythene. ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जल्दी से, आसानी से, आराम से समझ आ जाएगा. तो पहले आप क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लीजिए. क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ए पॉलीथीन पीस व्हेन रब्ड विथ वूल is found to have a negative charge of 16 into 10 to the power -18 coulomb. Then calculate the mass transferred from wool to the polythene. तो ए पॉलीथीन पीस व्हेन रब्ड विथ वूल, मान लो आप एक पॉलीथीन पीस को लेके उसको वुड के साथ, हम लोग वूल के साथ रब करते हैं, तो ये बोलता है कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ किस पे, वैल्यू कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना आ गया, 16 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम आ गया. सो अभी क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द मास ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, मतलब इस प्रोसेस में कितना मास ट्रांसफर हो गया. तो पहले मास ट्रांसफर, आप देखिए जब ट्रांसफर होता है तो एक्चुअली क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है. तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि जो प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए. उसके बाद हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. अगर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मास कितना होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देके निकाल लेंगे. तो पहले देखो, तो ये बोल रहा है कि व्हेन ए पॉलीथीन पीस इज रब्ड विथ वूल द चार्ज डेवलप्ड ऑन इट इज फाउंड टू बी, कितना है चार्ज का वैल्यू कितना है, पहले आप लिख लीजिए
16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये हो गया चार्ज। ठीक है, हमको पता है ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। पूरा का पूरा प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। तो हमको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन, तो एन की कितना हो जाएगा Q बाई ई। तो वैल्यू लगा लो 16 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इक्वल टू कितना मिलेगा आपको देख लो 16 बाई 1.6 इंटू ये आ जाएगा 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19। तो ये आ जाएगा कितना 10, ये भी आ जाएगा आपका 10, तो कितना आ गया 100। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस में आपका 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर, मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस में कितना मास ट्रांसफर हुआ है वो आपको पूछ रहा है। तो अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो टोटल मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 100 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, that will be equal to 911 into 10⁻⁻31 kg. This is the amount of mass which has been transferred फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। पूरा का पूरा प्रोसेस में आपको अगर देखोगे तो पहले क्या हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है पूरा का पूरा प्रोसेस में इतने अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो आपको पूछे अगर इतना अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो कितने अमाउंट का मास ट्रांसफर हुआ होगा। तो हम लोग को पता है चार्ज ट्रांसफर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है, कैसे क्यू का वैल्यू दे रखा है, यू का वैल्यू पता है, हम लोग को फॉर्मूला भी पता है क्यू इक्वल टू एन, तो सो एन इक्वल टू क्यू बाई फॉर्मूला लगा लो, एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा 100। तो मतलब इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि पूरा का पूरा प्रोसेस में 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो पूरा का पूरा प्रोसेस में अगर 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है तो उसका मास कितना हो जाएगा, टोटल मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 100 इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो वैल्यू आ जाएगा कितना 911 इंटू 10⁻⁻31 kg। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट we'll move into question number 6. Now what is the question number 6? A glass rod when rubbed with question number 6 is a glass rod when rubbed with a silk cloth acquires a charge 1.6 into 10⁻⁻13 coulomb. What is the charge on the silk cloth? What is the charge on the silk cloth? पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत छोटा सा कंसेप्ट रहता है लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता। अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो क्वेश्चन दे रखा है कि ए ग्लास रॉड व्हेन ड्रॉप्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ डेवलप्स ए चार्ज ऑफ दिस मच, देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिल्क क्लॉथ। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस में अगर ग्लास रॉड के ऊपर इतना चार्ज आता है तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो मैं आपको याद दिला दूँ, हम लोग पढ़े थे कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हुए हम लोग एक पढ़े थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। उसी प्रोसेस में हम लोग ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों चार्ज हो रहे थे। लेकिन अभी वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताया था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग द चार्जेस डेवलप ऑन द बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट। मतलब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन नेचर अपोजिट होगा। मतलब क्यों होता है ये चीज़, क्यों होता है हम लोग यहाँ पे और थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि मैंने हमारा जो पिछले वीडियो है उसमें बताया था। देखो एक ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड लेके गए उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब किए तो पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ पे चला गया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पे चला गया। अभी वहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताया था उसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, ए बॉडी विल लूज सम इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर बॉडी विल गेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके लिए क्या उससे क्या होगा, एक बॉडी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरा बॉडी उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्वेश्चन क्या देख रखा है, ए ग्लास रॉड रब्ड व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स ए चार्ज, मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन ग्लास रॉड। ग्लास रॉड के ऊपर जो उसका सोल्यूशन
यही है, बहुत सिंपल सा है, देख लो समझ लो। चार्ज प्रेजेंट ऑन द ग्लास रॉड इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। आपको दिया है व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सिल्क क्लॉथ, व्हाट इज द चार्ज डेवलप्ड ऑन द सिल्क क्लॉथ। तो हम लोग पढ़े हैं फ्रिक्शन में क्या होता है, द चार्जेस डेवलप्ड ऑन द बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। सो ग्लास रॉड पे जितना चार्ज डेवलप होगा सिल्क क्लॉथ पे उतना ही चार्ज डेवलप होगा। ये जिस नेचर का होगा ये उसका अपोजिट नेचर का होगा, मतलब सिल्क क्लॉथ पे -1.6 इंटू 10⁻13 कूलम ऑफ चार्ज डेवलप होगा। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था, पूरा का पूरा एक छोटा सा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर उस कंसेप्ट के अंदर आप घुस नहीं पाए तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक ग्लास रॉड व्हेन ड्रॉप्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ, आपको ऐसे चार्ज ऑफ दिस, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो पूरा का पूरा प्रोसेस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, और हम लोग को पता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे बोथ द बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज, मतलब द चार्ज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेकंड बॉडी। सो अगर ग्लास रॉड का चार्ज इतना अमाउंट का पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सिल्क क्लॉथ का चार्ज उतना अमाउंट का नेगेटिव का होगा, ठीक है। अभी ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है कि फाइंड द चार्ज on a body, find the charge on a body which starts to move with a speed 30 meter per second if the charge on it at rest is 3.2 माइक्रोकूलम। अभी देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉडी व्हिच स्टार्ट्स टू मूव विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड इफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इज 3.2 माइक्रोकूलम व्हेन इट इज एट रेस्ट। मतलब एक बॉडी जब रेस्ट पे था उसके ऊपर अगर चार्ज 3.2 माइक्रोकूलम का था, तो अगर वही बॉडी उसी टाइम पे मोशन करना शुरू कर दे और उसका स्पीड कितना हो जाए 30 मीटर पर सेकेंड, सो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द सेम बॉडी। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे जो डाटा दिया है ये डाटा एक्स्ट्रा डाटा है, ये आपको दिक्कत में डालने के लिए दिया है, मतलब इस डाटा का कोई यूज़ नहीं होगा। क्यों? हमको पता है कि इनवेरियंस ऑफ चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी डजंट चेंज ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, दैट इज क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मोशन। मतलब चार्ज, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रहता है तो उसका चार्ज जितना होगा, एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे रहता है तो भी उसका चार्ज उतना ही होगा। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा वही 3.2 माइक्रोकूलम, वही द सेम चीज़। क्वेश्चन दे रखा था एक चार्ज, एक बॉडी रेस्ट में, उसके ऊपर अगर चार्ज इतना है तो अगर वही बॉडी मोशन करना शुरू करेगा और उसका देखो क्वेश्चन कितने चालाकी से दिया है क्वेश्चन को, उससे वहाँ पे उसका वेलोसिटी भी आपको दे रखा है। आपको ऐसे लगेगा क्वेश्चन पढ़ के कि उसमें कुछ है, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन ऐसे कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन एंट्रांस में कुछ ऐसे क्वेश्चन एक दो भी वो पूछ लेता है जहाँ पे उसके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन हमको लगता है कुछ, मतलब उसमें जैसे कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता है। अगर हम गौर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझेंगे, उसके कंसेप्ट में जाएगा, उसके मैकेनिज्म का अंदर घुस जाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि असली चीज़ यही है। तो यहाँ पे उसको एक्स्ट्रानियस डाटा बोलते हैं, इस डाटा का कोई यूज़ ही नहीं होगा, लेकिन ये आपको दिक्कत में डालेगा, बार बार आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा कि उसमें कुछ है, उसमें कुछ है, वरना ये चीज़ क्यों लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जिन पे आपको एक्स्ट्रा डाटा दे रखा होता है, आपको डाउटफुल, मतलब आपके माइंड को डाउटफुल करने के लिए। तो आपको उस चीज़ पे नहीं चलना है, आपको बस सिंपल पढ़ना है। रेस्ट में है इतना है तो मोशन पे होगा कितना होगा, तो क्या है? चार्ज है। हम लोग को पता है चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज विद द स्पीड ऑफ द बॉडी। मतलब एक बॉडी रेस्ट पे रहता है तो ही उसके ऊपर चार्ज इतना है, एक बॉडी मोशन पे हो जाएगा वही बॉडी, और उसका स्पीड चाहे कितना भी हो जाए, उसका स्पीड कितना लेस हो, कितना स्पीड हो, उससे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा। इसलिए क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मोशन व्हिच इज कॉल्ड एज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसीलिए पहले से उसके ऊपर चार्ज था कितना 3.2 माइक्रोकूलम, अभी भी उसके ऊपर चार्ज वही 3.2 माइक्रोकूलम ही रहेगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए चार्ज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है देख लो, ए चार्ज ऑफ 880 माइक्रोकूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly over a circular ring of radius 14 meter
फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी ये क्वेश्चन किसके ऊपर पूछ दिया है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग पढ़े थे कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 3 तरीके का होता है। क्या क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको चार्ज का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 880 माइक्रोकूलम, और उसको वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसके ऊपर, ए सर्कुलर रिंग के ऊपर, जिसका आपको रेडियस भी दे रखा है। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसा है, सर्कुलर रिंग है ना, दिस इज ए सर्कुलर रिंग, उसका रेडियस आपको दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है कितना है, 14 मीटर, और उसके ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं यूनिफॉर्मली है, उसका वैल्यू भी आपको दे रखा है, मतलब क्यू दे रखा है 880 माइक्रोकूलम, और आपको दे रखा है क्या, रेडियस भी दे रखा है 14 मीटर। आपको पूछा है क्या, व्हाट इज द फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा है, हम लोग को पता होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्बडा, लैम्बडा का आपको पूछा है। अभी देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लैम्बडा का जनरल फॉर्मूला होता है क्या, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज बाई लेंथ होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब उसका वैल्यू होता है चार्ज पर लेंथ, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सो ये हो गया, क्यू का वैल्यू तो आपको दे रखा है, लेकिन एल पे थोड़ा काम बाकी है अभी। एल क्या होता है, लेंथ। अभी देखो ये पूरा का पूरा लेंथ, मतलब ये सर्कुलर रिंग है, इसलिए उसका लेंथ क्या होगा, उसका सर्कमफरेंस होगा। अगर रेडियस आ रहे तो उसका सर्कमफरेंस कितना, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला कितना है, 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो अभी वैल्यू पुट कर लो, 880 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम दे रखा है तो पहले है, अब देख लो ये मीटर है, ऐसा यूनिट है, तो पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 इतना कूलम इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू होता है 14। ये वैल्यू अगर हम लोग डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 818 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 88, सो दैट इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, सो फाइनली विल गेट आंसर व्हाट, 10 टू द पावर -5 कूलम पर मीटर। यूनिट लिखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना, लैम्बडा, लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको दिया था इतना अमाउंट का चार्ज एक सर्कुलर रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और उस रिंग का रेडियस भी आपको दे रखा है, तो आपको पूछा है व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले आप लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है क्या, चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब क्यू बाई एल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। सो क्यू का वैल्यू तो आपको दे रखा है, अभी एल, एल का मतलब है लेंथ, जहाँ जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसके ऊपर, सर्कुलर रिंग के ऊपर। सो आपको सर्कुलर रिंग का जिस लाइन पे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मतलब यहाँ पे उसका सर्कमफरेंस, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसका लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, जहाँ पे आर उसका रेडियस है। सो क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू है, आपको बस पुट करना है, लेकिन पुट करने से पहले आपको देखना है कि सिस्टम सही है कि नहीं। मतलब ये एसआई में दे रखा है, उसको भी एसआई में ही कन्वर्ट करना है। माइक्रो को आपको कूलम पे कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -6, और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 8 खत्म। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। आपको पहले क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, पहले आप उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के समझ लो, उसके बाद मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर आर चार्ज्ड बाय इंडक्शन एंड देन सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। स्फीयर ए हैज ए चार्ज +q एंड स्फीयर बी हैज ए चार्ज -q, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ये दे रखा है कि थर्ड स्फीयर इज इनिशियली अनचार्ज, मतलब सी एक था वो इनिशियली अनचार्ज था, उसके ऊपर चार्ज 0 था, ठीक है। इनिशियली अनचार्ज मतलब चार्ज 0 था। इफ स्फीयर सी इज टच टू स्फीयर ए, पहले उस स्फीयर सी को लेके ए के साथ टच कराया गया है, पहले फर्स्ट टच ए, उसके बाद क्या हुआ, एंड देन टच टू स्फीयर बी, उसके बाद देन नेक्स्ट मतलब स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2 पे उसको टच किया गया किसके साथ, बी के साथ, एंड देन टच टू स्फीयर बी एंड देन सेपरेटेड, देन डिटरमाइन द फाइनल चार्जेस ऑन दिस 3 स्फीयर। देखो क्वेश्चन को देखो, अभी हम क्वेश्चन को उस बोर्ड में कुछ सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन दे रखा है कि 2 चार्जेस आर देयर ए एंड बी, 2 बॉडीज आर देयर ए एंड बी व्हिच आर चार्ज बाय इंडक्शन, और इंडक्शन के द्वारा चार्ज करने के बाद उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाता है, एक का है +q, दूसरे का होता है कितना -q, ठीक है। अभी और एक थर्ड चार्ज है जो अनचार्ज है, न्यूट्रल है, उसका चार्ज 0 है, तो पहले तो उसको लगाया गया किसके साथ,
टच किया गया किसके साथ, ए के साथ, उसके बाद उसको टच किया गया बी के साथ। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनली व्हाट इज द चार्ज, फाइनल कंडीशन में व्हाट इज द चार्ज ऑन ए, व्हाट इज द चार्ज ऑन बी और व्हाट इज द चार्ज ऑन सी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले आपको अच्छे से क्वेश्चन समझना है। क्या था पहले क्वेश्चन, पहले ऐसा था कि ए था बी अपने जगह पर थे, ए था, ए ऐसा था, उसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस क्यू, बी ऐसा था, उसके ऊपर चार्ज कितना है माइनस क्यू। पहले उसके बाद क्या हुआ, सी, एक ऑब्जेक्ट सी था, उसके ऊपर वो न्यूट्रल था, अनचार्ज था, उसको लेके पहले किसके साथ टच किया, ए के साथ टच किया। अभी देखो यहाँ पे समझो जरा, ए के साथ जब टच करें तो क्या होगा, हम लोग पढ़े थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब कंडक्शन, और हम लोग पढ़े थे कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, और मैं आपको बताया था कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, उस पॉइंट पे आपको बताया था कि चार्ज विल ट्रांसफर अंटिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द बॉडीज बिकम इक्वल। सो यहाँ पे कितना, इसके ऊपर चार्ज कितना है 0, इसके ऊपर चार्ज कितना है q, तो इसको जब हम लोग उसके साथ टच करेंगे तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होता जाएगा, फ्लो होता जाएगा। फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों के ऊपर चार्ज, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, मतलब उसका भी चार्ज हो जाएगा q/2, इसका भी चार्ज हो जाएगा q/2, मतलब ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। मतलब when the sphere C, when the object C is touched to A, after that we will find a situation what A has a charge plus q/2, also C has a charge plus q/2, ठीक है। तो मतलब A का चार्ज निकल गया प्लस q/2, ठीक है, A का चार्ज निकल गया प्लस q/2। अभी क्या किया, फिर उसके बाद जैसे हम लोग C को लेके पहले से A से टच कराए, उसके बाद उसी C को लेके फिर से B से टच कराए, मतलब अभी B के पास कितना चार्ज था माइनस क्यू, C के पास कितना आ गया प्लस q/2, उसको जैसे ही इसके साथ टच कराए तो अभी क्या होगा, देखो सेम होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंट है ना। तो चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस q/2, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब /2, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा -2q प्लस q, मतलब -q/2/2, मतलब -q/4, मतलब B के ऊपर भी चार्ज होगा -q/4 और C के ऊपर भी चार्ज होगा -q/4, ठीक है। मतलब सो फाइनली द चार्जेस ऑन A, B, C आर प्लस q/2 -q/4 एंड फाइनली -q/4। और एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन दे रखा था, अभी शॉर्ट में समझाएंगे, ठीक है। क्या दे रखा था, तीनों ऑब्जेक्ट थे, तो ए का चार्ज होता है प्लस क्यू, बी का चार्ज होता है माइनस क्यू। पहले आप सी, एक बॉडी था जो अनचार्ज बॉडी था, पहले आप उसको लेके ए से टच कराए, उसके बाद सी को लेके फिर से बी से टच कराए, फाइनली व्हाट इज द चार्ज ऑन ए, बी, सी। तो पहले देखिए की के ऊपर तो चार्ज 0 था, जैसे वो जाके ए से टच हुआ तो क्या होगा, दोनों एक अनचार्ज बॉडी जाके टच, मतलब चार्ज बॉडी से टच होता है, तो वहाँ पे कंडक्शन प्रिंसिपल काम करेगा, चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। तो मतलब चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, q + 0 = q, आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब a के ऊपर भी चार्ज हाफ हो जाएगा, c के ऊपर भी चार्ज हाफ हो जाएगा, मतलब q/2 ऐसा सिचुएशन हो गया, a का प्लस q/2, c का भी प्लस q/2। फिर से तो a तो यहाँ पर रह गया, फिर से c को लेके b से टच करें, मतलब a का चार्ज निकल गया, प्लस q/2 तो निकल गया है पहले। उसके बाद क्या हुआ, c को लेके हम लोग b से टच कराए, अभी देखो b का चार्ज क्या होता है -q, c का चार्ज क्या है प्लस q/2। अभी फिर से दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं है, जैसे फिर उसको टच कराए, लगा लिए, तो क्या होगा, फिर से चार्ज फ्लो करेगा, फिर से चार्ज ट्रांसफर होगा, फिर से चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं आ जाता है। अब देखो दोनों बॉडी का पोटेंशियल कब सेम हो जाएगा, जब दोनों के ऊपर चार्ज सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों बॉडी सेम नेचर का है, सेम टाइप का है, सेम साइज का है। तो अभी देखो टोटल चार्ज /2 कर लो, दोनों बॉडी के पास चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज /2 आधा आधा हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा, -q प्लस q/2/2। आंसर क्या हो जाएगा, -q/4, मतलब वही चार्ज b के ऊपर रहेगा, वही चार्ज c के ऊपर रहेगा, ठीक है। अभी आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सा सादा क्वेश्चन है, आप आराम से उसको निकाल लेंगे अगर आपको एक यूनिट पता होगा। चार्ज के यूनिट हम लोग बताए थे कूलम, चार्ज का एक्सपेरिमेंट कूलम होता है, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, 12 कूलम पर मिनट can be written as what, option 2 ampere, option B 0.2 ampere, option C 0.02 ampere and option D 0.002 ampere। इस MCQ क्वेश्चन के साथ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस न्यूमेरिकल सेशन को एंड करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है कि 12 कूलम पर मिनट कैन बी रिटन एज डैश, मतलब 12 कूलम पर मिनट कैन बी रिटन एज डैश, 2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.02 एम्पियर या फिर 0.002 एम्पियर। अब देखिए हम आपको पढ़ाए थे कि चार्ज का एस यूनिट कूलम होता है, सो कूलम का ओरेट की यूनिट भी होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। कैसे, हमको पता है ना, I = Q/T।
मतलब आई का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है ना, एक बेसिक यूनिट ऐसा ही सिस्टम है जो 7 यूनिट है उसके अंदर ये है। और क्यू का क्या होता है, कूलम, ये टी का मतलब सेकेंड होता है, टाइम का सेकेंड होता है। तो इससे हमको पता चला कूलम बाई सेकेंड इक्वल टू एम्पियर। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखे, कूलम पर मिनट। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, 12 कूलम पर मिनट। पहले आपको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब 12 कूलम डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड, 12 कूलम डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। अभी देखिए क्या हो जाएगा, 12 बाई 60 को हम लोग लिख लेते हैं क्या, 6 इंटू 10। अभी 6 12 कट के कितना हो जाएगा 2, मतलब 2/10 कूलम पर सेकेंड। अभी 2/10 कितना हो जाएगा 0.2 कूलम बाई सेकेंड। कूलम बाई सेकेंड क्या हो जाएगा, एम्पियर। सो आंसर कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसके साथ ये सेशन को, न्यूमेरिकल सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कराए, इसीलिए ताकि आपका न्यूमेरिकल्स के साथ कुछ नाता जुड़ जाए, मतलब आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आगे आगे सेशन शुरू होगा, जैसे ही आगे आगे वीडियो चलता रहेगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। इसके साथ आज ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का 4 वीडियोस, उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स। ये 10 क्वेश्चन को आप और एक बार लिख के उसको प्रैक्टिस कर लेना समझ के, मतलब क्वेश्चन अब देखिए जहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन बनाए उसमें से मतलब बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं था, बस 1-2 फॉर्मूला था, उसके ऊपर काम है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके, वी विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम बेसिक रिविजन्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा शॉर्ट्स बाकी है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग ऐसे कुछ बात करेंगे जिसके बारे में किसी को, मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा। वेल कम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर,